welcome Chairperson NIS, Professor Shobhit Sharma, our HODs, colleagues. Today we are going to initiate the lecture series relating to health issues. So in first series, Dr. Safalta Bhagmore, she is MBBS and MD and DN Medical Oncology from AIIMS, New Delhi. She is a very known oncologist in the field of oncology. She was previously working DLK Pusa Road. Presently she is working Max Hospital Vaishali, and she has more than 15-year experience in this field. So today she is going to speak on the awareness of the cancer, which is a very deadly disease for all of us. It is very much prevalent. So will definitely enrich the talk given by Professor Dr. Safalta Bhagmore. Now I will request Chairperson Madam to say a few words before Dr. Bhagmore start her talk. Our learned guest Dr. Safalta Bhagmore, all the directors present over here, our secretary, JDs, Upreti ji, and newly appointed Dr. Tripathi, and all the employees who are present over here, who are just who have joined this program, all the regional directors across India. Warm greetings from my side. It is very auspicious day. Today is the first Shravan Somvar, and we have performed puja also here. So it is auspicious day in other sense that we have started CGHS facility in NIOS, cashless facility through different hospitals. So in continuation, Dr. Safalta is here, and she will put light on how cancer can be prevented and what kind of medication is needed in different stages of cancer, because we all know though it is curable in some way but not completely. Still we are in search of perfect answer of cancer. So she is very experienced doctor in the field, and I hope she will enlighten us and we will be benefited with her vast and great experience. Thank you very much, and I will welcome you in NIOS, Dr. Safalta. Thank you NIOS for giving me this opportunity, because it is very important to reach out to the people that what we should know, what is wrong, what is right in the field of cancer. So I will be highlighting the myths, I will be highlighting the causes, the risk factors, what all symptoms we have to see, and how the investigations are done, how the treatment is given in a very brief way. Okay, so let me start. कैंसर, जब कैंसर की डायग्नोसिस बनती है पूरा परिवार टूटता है. मतलब कोई भी आप जस्ट इमेजिन कर लो, और कि कैंसर की डायग्नोसिस किसी को भी परिवार में पता चले तो फिर लगता है कि सिर्फ उस इंसान को कैंसर नहीं, पूरे परिवार टूट चुका है. क्या क्या होगा, बहुत कुछ सुना है, बहुत दर्दनाक होता है, इलाज भी दर्दनाक होता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, लाइफ नहीं बचती है. 6 मंथ्स की लाइफ मूवीज़ में ज़्यादातर 6 मंथ्स दिखाते हैं, जो 6 मंथ्स की लाइफ है. बहुत तकलीफ़ होती है ये सब चीज़ सोच के भी. हम लोग एक एक मिथ्स को हम देखते जाएंगे और हम उसके बारे में बात करते जाएंगे. कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस. जब डेथ सेंटेंस की बात कहते हैं, थोड़ी सच्चाई भी है और थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के बोला गया है, बहुत कुछ नहीं भी है इसमें. क्या होता है कि कैंसर जब बहुत छोटा होता है, बहुत छोटी चीज़ अगर कोई गांठ पता चलती है, वो बहुत आसानी से ट्रीट किया जा सकता है. हो सकता है ट्रीटमेंट का प्रोसेस 6 मंथ्स का हो, बट वो ट्रीट होके क्योर हो सकता है और कभी वापस ना आए, ऐसा भी हो सकता है. पर अगर वही एडवांस स्टेज में हो, स्टेज 3, स्टेज 4, ऐसा कुछ हो, उसमें ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाता है. सो बेस्ट पार्ट ये होता है कि जब हमें थोड़ा सिम्टम पता चले, उसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगी. जब भी हमको सिम्टम पता चले, हम जाके डॉक्टर से अपना इवैल्यूएशन कराते हैं. सो आप लोगों ने जान तो लिया. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. 2-3 क्वेश्चन मेरे माइंड में है. बताइए.
पहले तो आपने बताया कि जो 20% केसेस में अर्ली डिटेक्शन होता है, इसमें तो 80% इज अभी अर्ली डिटेक्शन की दायरे में नहीं है। नहीं, दायरे में नहीं है, नहीं है, पेशेंट ही नहीं आता। हम पेशेंट ही घर में बैठा रहता है कि वो छोटा सा तो गांठ है, हम अभी इतनी जल्दी मतलब कुछ भी होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा। पेशेंट हमारे पास बहुत लेट से पहुंचते हैं। इसमें क्वेश्चन वेरी स्पेसिफिक है, जो बेसिकली लंग्स कैंसर है, इसकी अर्ली डिटेक्शन की कुछ आप बता सके। नंबर 1, जैसे कुछ कैंसर्स में हमारे यहाँ कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि लंग्स एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, तो जब ऑर्गन में कोई छोटा सा गांठ होता है तो पता ही नहीं चलता है। चीज़ होती है कि हम लोग रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं कि कोई नॉर्मल आता है इंसान, एक आया जिसको कुछ सिम्टम नहीं है, वो बोलता है कि मैं ना स्मोकिंग करता हूँ ना कुछ ये सब चीज़ नहीं है, हम लोग उसमें बोलते हैं कि ठीक है आप एक्सरे करवा लीजिए या आप नॉर्मल फॉलोअप में रह सकते हैं, चांसेस कम हैं, बहुत कम चांसेस हैं कैंसर होने के। पर वही स्मोकर आता है तो इतने साल 15 ईयर्स हो चुके हैं, तो लो डोज एक्सरे, लो डोज सीटी स्कैन होता है, उस तरीके से हम इवैल्यूएट करते हैं। ये चीज़ है, कोई नॉर्मल इंसान अंदर आता है। बाकी थोड़ा सा जब वो लीजन्स बड़े होने लग जाते हैं तो फिर वो चेस्ट पेन, कॉफ, उस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो तरीका है अर्ली डिटेक्शन का। बट लंग एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, इसलिए जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तभी सिम्टम्स आना चालू होते हैं। तो वो एक फैलेसी होती है कि ज़्यादातर लंग कैंसर हमको स्टेज 3, स्टेज 4 में पता चलते हैं। वैसे ही पित्त की थैली का कैंसर, पित्त की जो थैली का कैंसर होता है वो भी हमको इवन अगर स्टेज 1 में भी पता चलता है तो भी अगले 5 साल तक वो पेशेंट ज़िंदा रहेगा, उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं, 50% ही होते हैं। और पित्त की थैली का कैंसर ज़्यादातर यूपी बिहार के बेल्ट में मिलता है। वहाँ पे जो गंगा का बेल्ट है उसके आसपास के एरियाज़ में ज़्यादा होता है, तो वो एक सेटबैक है। पेनक्रियास का कैंसर है, पेनक्रियास का कैंसर बिल्कुल एक पेट में एक ऑर्गन है, अब वो छोटा सा उसमें गुठली हो जाएगी, छोटी सी गांठ हो जाएगी, पता ही नहीं चलता है, वो भी ज़्यादातर टाइम स्टेज 3, स्टेज 4 में पता चलता है। मतलब बहुत लकी होते हैं लोग कि कुछ ऐसे ही चेकअप हुआ, रूटीन चेकअप हुआ या कभी और अचानक पकड़ा गया। तो देयर आर लिमिटेशंस इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर। जब बहुत बड़ा ऑर्गन है, लिवर का इतना बड़ा लिवर है, उसमें छोटी सी गांठ हुई, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। One is the cervical cancer, which is a vaccine for that. Till what age can this be taken and from which age? So recommended, as I told in the presentation itself, like it is like between 9 years to 26 years it is recommended. But of late, like at AIMS there was a study in which 45 years of females were included in the study and they got some benefit. It is not like much of a benefit to make it as a guideline, but they had some benefit. So what I feel is that whatever benefit, 5%, 10%, whatever benefit, because we have vaccination for only one cancer, so we should take it. Even I have taken at the age of 33. Yes, but that's not very well known fact. Yes. I mean, there needs to be advocacy about this because Yes, girls and females don't know about it. Yes. So when The second question is regarding hepatitis B and C. Till what age again can it can be taken. It can be taken Any at age? any age. So like adults even we can take it. Yes, yes. And where is it available? It is available in almost all the hospitals. Yeah, it is available. No, so we have to take both B and C or anyone. Hepatitis. C के लिए तो है नहीं, अच्छा. बट B के लिए हमारे पास वैक्सीन है, वो लेना चाहिए। एंड C वायरस जो हेपेटाइटिस C वायरस था, मतलब साइंस का एडवांसमेंट देखिए, मैं जब DM कर रही थी एम्स में, तो हमें प्रोफेसर बताते थे कि हमारा ही रेसिडेंट एक पेशेंट को, ट्रांसप्लांट पेशेंट था, उससे कुछ प्रोसीजर करते समय उसको भी इन्फेक्शन हो गया हेपेटाइटिस C का एंड ही डाइड, जो रेसिडेंट था, जो डॉक्टर थे। और आज के डेट में लाइक 5-7 years बैक इसके लिए क्योर आ चुका है। 99% हेपेटाइटिस C कैन बी क्योर्ड, मतलब ये एडवांसमेंट है इतनी ऐसे इसमें, सो इट इज़ क्योरेबल। बट हेपेटाइटिस C के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, B के लिए B वो के लेना चाहिए। Regional same percentage. Regional same percentage. Any side effect of cervical cancer? नहीं, वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स अभी आए हैं, गडासिल के ऊपर क्वेश्चंस भी आए हैं कि न्यूरोपैथीज हुआ है और ऐसा करके, तो किसी भी वैक्सीन को बदनाम किया जाता है। पोलियो वैक्सीन के लिए भी कितना बदनाम हुआ है पोलियो वैक्सीन, कि उसके कारण लोगों को पोलियो हो गया सॉर्ट ऑफ, बट एटलीस्ट इरेडिकेट हुआ ना। सो मैडम हेपेटाइटिस बी और जो सी का जो डोज है
उसका वैलिडिटी कितना ईयर्स का है, 4 ईयर्स का, 5 ईयर्स का या फॉरएवर है? नहीं नहीं, फॉरएवर नहीं होता है। मुझे भी नहीं पता था उस समय, जब हम लोग, मैंने ILBS में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम किया था मैंने 3.5 साल। तो जब हमको हमारे एंटीबॉडी चेक हुआ तो मेरा बहुत कम था, जबकि मैंने वैक्सीनेशन लगवाया था। सो हमको बूस्टर डोज लग गया। तो इट इज़ लाइक कि आप एवरी 5 ईयर्स चेक करा सकते हैं, और अगर कम हो रहा है, उसमें टाइटर होता है, लेस देन 10 हुआ तो आप बूस्टर डोज ले सकते हैं। किसी रीजनल सेंटर को कुछ पूछना है? बूस्टर डोज ये चुके उसके बाद ले सकते हैं। हाँ, अगर कम हो गया तो ले लो। Ma'am, can I ask you about if there is an unprecedented weight gain, in that case, is it indicative of anything? डाइट कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज करना है, और थायराइड की चेकअप कराना है। ये हम लोग हमेशा जब भी कुछ होता है तो हम भी बिनाइन कॉजेज सोचना चालू करते हैं। हम सबसे पहले कैंसर हमारे दिमाग में नहीं आता है, पहले हम ये सब चीज़ें सोचते हैं। बट वेट गेन रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उसमें कैंसर हो, बट यूजुअली वेट लॉस होता है। बट वेट ओवर वेट होना, वेट गेन होना एक रिस्क फैक्टर हो जाता है फॉर अदर कैंसर। रेगुलर मेडिकल चेकअप में कुछ ऐसा टेस्ट नहीं, रेगुलर मेडिकल चेकअप में ऐसा कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ऐसा बहुत सारा बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है कि में आता है कि एक ऐसा टेस्ट निकला है कि बस सारे कैंसर पता चल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको मैंने आपको यही बताया, हम रेगुलर चेकअप में आपका पेट स्कैन तो नहीं कर सकते, CT स्कैन तो नहीं कर सकते, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी सब कुछ करवा रहा है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ मतलब एक पेशेंट गया मतलब सारी जगह उसको सब कुछ खगाल लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो बहुत बेसिक चेकअप होते हैं कि लिपिड चेक करा लिया, ब्लड ठीक है कि नहीं करा लिया, उस तरह की चेकअप कराते हैं। इसलिए वो 100% सेफ आपको बता देगा, वैसा नहीं होता है। सो रेगुलर चेकअप कराइए, कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं, बट जब भी सिम्टम हो उसको ध्यान रखना है हमें। प्रोस्टेट के लिए कुछ चेक होता है ना, PSA या कुछ ऐसे कुछ? हाँ, प्रोस्टेट के लिए भी चेक होता है, बट हम लोग के टाइम पे पहले जब होता था तो उसमें था कि 4 का लेवल है दैट इज़ सेफ, उससे कम हुआ तो सेफ है, उससे ज़्यादा। आज की डेट में ये है कि नो लेवल इज़ सेफ। अलग अलग एज में अगर वही 70 ईयर्स के हैं तो प्रोस्टेट लेवल अगर वो 1 भी रहा तो भी वो अनसेफ है, हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर हो। तो साथ में PSA तो कराते हैं, हमें एक वो थोड़ा सा इंडिकेशन बनता है कि नहीं ये पेशेंट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, बट नन ऑफ देम इज सेफ। तो कभी सिम्टम्स डेवलप हो तो उसके लिए हमें चेकअप कराना है। many hospitals they talk about cancer screening. हाँ, Health checkup में हाँ, is it so or we can नहीं, detect? कैंसर स्क्रीनिंग में बेसिकली एक होता है थोड़ा पेशेंट को प्राइम करना कि आप डॉक्टर से जाके बात करेंगे, उनसे समझेंगे। जैसे आपने आज मुझसे बात किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें और भी पता चली होगी कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम। उसमें कुछ ऐसा होता है जैसे पैप स्मीयर है, दैट इज़ अ रिकमेंडेड स्क्रीनिंग प्रोग्राम। मैमोग्राम दैट इज़ अ रिकमेंडेड। सो देयर आर सर्टन थिंग्स जो हमें उस समय भी इंडिकेशन बताते हैं कि अगर कोई छोटा सा होगा, कुछ 1 से 2 सेंटीमीटर समथिंग का होगा जो पेशेंट खुद को नहीं पता चल रहा होगा, हम पता कर लेंगे। बट देन उसमें भी यही कहा जाता है कि दिस इज़ नॉट 100% कि हमने ये 2 टेस्ट कर ली और आप 100% बिल्कुल कैंसर फ्री हैं, ऐसा नहीं है। वी डोंट हैव स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स फॉर ऑल द कैंसर। अब स्क्रीनिंग प्रोग्राम में ओरल चेकअप करा लेते हैं, तो ओरल आपको देख लिया कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ डेंटल प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ नॉट लाइक इन डेप्थ चीज़ें, बट बेसिकली अ प्राइमिंग थिंग फॉर द पेशेंट। थैंक यू डॉक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कम्प्लीमेंट योर नेम कि जो भी पेशेंट आपके पास जाते होंगे तो उन्हें ऐसा लगता हो कि सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा होगी, नाम से ही एनकरेजमेंट मिलता होगा। दूसरा, आपने इतनी सिंप्लीफाई तरीके से बताया, हम तो कीमोथेरेपी से बड़ा डरते थे। आपने बताया बोतल के अंदर, ग्लूकोज की बोतल के अंदर ऐसे बैठ के ले लेते हैं और TV वगैरह देखते हैं। तो वेरी इनोवेटिव, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही आपने ऐसा बताया कि बहुत कुछ चीज़ें हमें नहीं पता चली। शायद कैंसर का ऐसा बीमारी है कि आसपास सभी के मिलेगा और सभी इतना ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आपने इतनी सिंप्लीफाई तरीके से इतनी सारी चीज़ें बताई, तो थैंक्स अ लॉट। और आप यहाँ पे आए हमारे NOS में और आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो उसके लिए NIS फैमिली आई थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। Thank you so much. आप लोगों ने इतना ध्यान से सुना, यही बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, ताकि आप अवेयरनेस फैले। हमारे देश में जो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, वो उसके डेथ रेट कम हो जाए, दैट इज़ द बिगेस्ट सक्सेस वी कैन हैव, कि पेशेंट जल्दी से ट्रीटमेंट ले ले, इनिशियल स्टेज में पता चल जाए। एंड वी आर वेरी हैप्पी। मतलब बहुत सारे ऐसे कैंसर्स होते हैं जब पेशेंट आता है, मतलब
जैसे मैंने ओपीडी में देखा था, परसों ओपीडी में देखा था पेशेंट को, तो जब वो स्कूल में था तब मैंने ट्रीट किया था, अब वो जर्नलिज्म कर चुका है, तो मैंने उसको भी बोला कि बेटा तेरे को पब्लिसाइज़ करना है कि कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, लाइफ नॉर्मल रहती है। सो ऐसे जब शादी का कार्ड देने आते हैं ना, जब हम बच्चे जब एम्स में थे और वहाँ उस समय ट्रीट किया था, और जो बाद में जब शादी का कार्ड देने आते हैं ऐसा लगता है कि यही तो हमारी ज़िंदगी है। नहीं तो डिप्रेशन तो हमें भी होता है जब ऐसा देखते हैं। हमारी जर्नी एक्चुअली कैंसर पेशेंट के साथ लंबी होती है। आप अगर किसी फिजिशियन के पास जाओगे, खांसी, वो दवाई लिखा चले गए, पेशेंट ठीक हो गया, वापस कभी नहीं आए, हो सकता ना आए। हमारे साथ होता है कि एक बार पेशेंट जुड़ता है वो लंबे समय तक जुड़ता है, और जब हमें पता चलना चालू होता है ना कि अब 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं है, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब वो हम उसके पार्ट बन चुके होते हैं, वो हमारा पार्ट बन चुका होता है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो हमें वो दर्द हम महसूस करते हैं। मतलब स्टार्टिंग के लाइफ में तो ऐसा हो गया था क्योंकि डेली मेरी आंखों से आंसू निकलता था, मैं कैसे बताऊँ क्या करूँ, तो ऐसा। अब थोड़ा सा इमोशंस में कंट्रोल आ चुका है, देखते आए हैं लोगों को, बट ज़रूर हम वो फील करते हैं। हमें लगता है कि काश ये पेशेंट हमारे पास पहले आ चुके होते हैं, हम इसको ट्रीट कर चुके होते हैं, और ये जब क्योर होके जाते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती। सो इसीलिए यही इंटेंशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, उनको अवेयर कर सकें। ट्रीटमेंट इज़ पॉसिबल, लॉन्ग टर्म लाइफ इज़ पॉसिबल।